everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel SNEPS Biology. So in this video we are going to discuss some most important questions from human reproduction which will be helpful in your CPET 2022. Okay, तो start करते हैं. But before discussion, let me tell you, if you're new to this channel, do subscribe. Press that bell icon next to the subscription button. Select all to get all the notifications whenever a new video comes up from our channel. अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, हेल्प कर रहा है, देन डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. इन फीमेल्स द हार्मोन इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय granulosa and theca cells, granulosa cells and corpus luteum, granulosa and cumulus euphorus cells या फिर granulosa cells and zona pellucida. Okay, so in females the hormone inhibin is secreted by your granulosa and theca cells. Clear? Next, come to question number 2. The most commonly used marker enzyme in clinical diagnosis of prostate cancer is. ओके, प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा एंजाइम मार्कर के तौर पे यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली? क्लियर? अमाइलेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, गामा जीटीपीएच या फिर एसिड फॉस्फेटेज. ओके, द आंसर इज एसिड फॉस्फेटेज. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3. स्टेरियोसिलिया अकर इन. स्टेरियोसिलिया किस में दिखाई देता है? सीडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ ट्रैकिया, कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ स्टोमक, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ फेरिंग्स या फिर सीडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ एपिडिडाइमिस. ओके, इट इज फाउंड इन द सीडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ योर एपिडिडाइमिस. डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट forms placenta even before implantation, gets implanted into uterus 3 days after ovulation, gets nutrition from uterine endometrial secretion only after implantation या फिर gets implanted in endometrium by the trophoblast cells. Okay, so female में जो blastocyst होता है human females में, it gets implanted in endometrium by the trophoblast cells. Okay, so D is the correct answer. Next come to question number 5. Identical twins are also known as. उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, राइट? तो ऑप्शन ए, आइडेंटिकल ट्विन मतलब क्या है? जो पूरा सेम टू सेम एग्जैक्ट दिखते हैं, राइट? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. The testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. ओके, ये हमें पता है. क्वेश्चन पूछा है द पर्पस सर्व्ड इज फॉर. क्यों? Why testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch, okay, which is called as scrotum. So options है maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature, escaping any possible compression by the visceral organs या फिर providing more space for the growth of epididymis या फिर providing as secondary sexual feature for exhibiting the male sex. Okay, तो ये होता है only to maintain the lower temperature. Clear? So maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature. Okay, this is the correct answer. Now come to question number 7. Signals for parturition originate from both placenta as well as fully developed fetus, oxytocin released from maternal pituitary, placenta only या फिर fully developed fetus only. Okay, so signal from parturition, okay, it originate from both placenta as well as fully developed fetus. Okay, both signals are required. Next, come to question number 8. In spermatogenesis, reduction division of chromosome occurs during conversion of. Spermatogenesis, okay, जो होता है प्रोसेस, क्या होता है प्रोसेस मैं अभी नहीं बोलूँगी, आप लोगों को पता है. अगर नहीं पता है देन कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना. ओके, पता होनी चाहिए. क्लियर? तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होता है ड्यूरिंग व्हिच फेज? ओके, कन्वर्जन ऑफ व्हाट? सो क्वेश्चन है स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड्स या फिर स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म. ओके, क्लियर? तो किसके कन्वर्जन में, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में किसके कन्वर्जन में रिडक्शन डिवीजन होता है क्रोमोसोम में? ओके, सो इट इज
फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर, समझ में आया? तो ये जो ऑप्शंस है ना, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से जो प्रोसेसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, वो आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट करवाना है। ओके, किसके बाद क्या होता है और किस में क्रोमोसोम नंबर घटता है, बढ़ता है, ये सब। क्लियर, किसके डिवीजन से क्या फॉर्म होता है, अंडरस्टूड? तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन इज नॉट अ प्लेसेंटल हार्मोन? इनमें से क्या एक प्लेसेंटल हार्मोन नहीं है? ओके, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, उसी तरह HCS प्रोजेस्टेरॉन या फिर मेलाटोनिन। ओके, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज HCS। क्लियर, तो देखो 9 का आपका आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। क्यों? मेलाटोनिन जो है वो कौन सिक्रेट करता है? पीनियल ग्लैंड। इट इज अ हार्मोन फ्रॉम पीनियल ग्लैंड। क्लियर, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10, if for some reason the vasa efferentia in human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from what? Okay, अगर कोई भी वजह से जो वासा इफ्रेंसिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो ब्लॉक हो जाए, ओके, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? जो गैमेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्लियर, तो देखो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, ओवरी टू यूटेरस या फिर वजाइना टू यूटेरस। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से करना है। वासा इफ्रेंसिया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओके क्या काम करता है वो आप अगर नहीं आपको नहीं पता होगा तो आप ये आंसर नहीं दे सकते, राइट? तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस तक गैमेट्स ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं हो सकते अगर वासा इफ्रेंसिया क्या है, ब्लॉक हो जाए। क्लियर, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। क्लियर, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स। कब होता है सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन? ओके, मैमेलियन ओवम में। So shortly after ovulation, before the ovum makes entry into the fallopian tube, या फिर until after the ovum has been penetrated by a sperm, until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum, या फिर in the Graafian follicle following the first maturation division. Okay, so इसका आंसर हो जाएगा आपका until after the ovum has been penetrated by the sperm. Clear? Next come to question number 12. Spermatids are transformed into स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। तो ये प्रोसेस क्या है? स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, मियोसिस या फिर स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, आंसर इज योर स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13, इन टेलोलेसिथल एग्स यॉक इज प्रेजेंट ऑन वन साइड, ऑन बोथ साइड्स, टुवर्ड्स वेजिटल पोल या फिर थ्रू आउट द एग। तो 13 में जो क्वेश्चन दिया है टेलोलेसिथल एग्स, यहाँ पे यॉक प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स द वेजिटल पोल। ओके, दैट्स वाई टेलोलेसिथल। क्लियर, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14, fetal ejection reflex in human female is induced by okay release of oxytocin from pituitary, fully developed fetus and placenta, differentiation of mammary glands या फिर pressure exerted by amniotic fluid। तो आंसर इज योर फुल्ली डेवलप्ड fetus and placenta। क्लियर, ये इंड्यूस करते हैं fetal ejection reflex in case of human female। अंडरस्टूड? 14 का आंसर ऑप्शन बी। Now come to the question number 15. The correct sequence of spermatogenesis stages leading to the formation of sperms in mature human testis is okay. Spermatogenetic stages की correct sequences हमें पता करनी है, okay? जहाँ पे sperm formation होते हैं। Clear? तो लास्ट में तो sperm form होगा, right? तो फर्स्ट क्या होता है? Spermatogonia, then spermatocyte form होगा, then spermatid, then spermatid से sperm। So यहाँ पे हमें ऑप्शन ए में ये दिखाई दे रहा है, राइट? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 16. The hormone that initiates ejection of milk, stimulates milk production and growth of ovarian follicles are respectively known as। तो कौन सा हार्मोन होता है जो इजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, इनिशिएट करता है? क्लियर, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन, देन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन, prolactin, then
ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स इज योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 17. इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? ओके, क्वेश्चन को समझो। अगर मैमेलियन ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, इट फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड, देन इनमें से क्या नहीं होगा? क्लियर? तो देखो, कार्पस लुटियम विल डिसइंटीग्रेट, ईस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस। ओके, सो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, ईस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे पूछा है क्या? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? क्या नहीं होगा, राइट? तो ये नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा। अंडरस्टूड? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. Sperm of animal species A cannot fertilize ovum of species B because. ओके, एनिमल स्पीसीज एक A है जिसका स्पर्म स्पीसीज B का ओव्यूम से फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है। क्यों? देखो, फर्टिलाइजेशन ऑफ A एंड एंटी फर्टिलाइजेशन ऑफ B आर नॉट कंपैटिबल। ये 8 हो गया है, ये B होगा। ओके, नेक्स्ट, एंटी फर्टिलाइजेशन ऑफ A and fertilizing of B are not compatible. Next, fertilizing of A and B are not compatible. Anti-fertilizing of A and B are not compatible. Okay, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? कि स्पर्म ऑफ एनिमल स्पीसीज A दे दिया है, राइट? तो A का एंटी फर्टिलाइजिंग और B का फर्टिलाइजिंग अगर कंपैटिबल हो तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे कंपैटिबल नहीं है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अंडरस्टूड? तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ ए, स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का एंटी फर्टिलाइजिंग एंड ओवर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइजिंग। अंडरस्टूड? दे शुड बी कंपैटिबल। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19. Which one of the following statements is false in respect of viability of mammalian sperm? Okay, क्या गलत है पूछा है? Which statement is false? Okay, किसके बारे में? मैमेलियन स्पर्म की वायबिलिटी। ओके, सर्वाइवेबिलिटी के बारे में। तो देखो, स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स। क्लियर? देन सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द pH of the medium and is more active in alkaline medium. Then viability of sperm is determined by its motility. Sperms must be concentrated in a thick suspension. ओके, क्या फॉल्स दिया है, राइट? तो ये जो क्वेश्चन ऑप्शन ए है, स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स, ये आपका गलत है। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20. Which extra embryonic membrane in humans prevent desiccation of the embryo inside the uterus? Okay, यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो की डेसिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन या फिर एलेंटॉइस? इट इज योर कोरियन। क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. So this is all about this practice set. I hope this video will be helpful to you all. ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हमने अपलोड किया हुआ है, ओके, इन 2020 एज वेल एज 21. तो वो सब वीडियो भी आप लोग देखना, प्लेलिस्ट में वो सब डाल दिया गया है. आप इस वीडियो के आई बटन में क्लिक करके आप वो देख सकते हो. ओके, सो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में विद अ न्यू प्रैक्टिस सेट. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. अगर पसंद आ रहा है वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.